Hello friends, my name is Tausif and welcome to the tutorial Tech with Tausif. If you want to learn how to build an Angular application, you have come to the right place. This is the first tutorial, so here I am going to provide you an introduction of Angular 10. So we will start from scratch and build our first application. I will explain in English and Hindi also, so it will be easy for us to get all those things. I will explain the Angular fundamentals step by step with real-time example on each topic. So let's get started. I will cover introduction part, which consists of what Angular is, impressive features of Angular, framework and SPA, and multi-page application. So I am going to cover all these points. So let's start with what Angular is. Angular is a framework to build client-side application. Angular क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट? सो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन मीन्स क्लाइंट साइड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड जो है एंगुलर जो है क्या है? क्लाइंट साइड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन बनाते हैं. क्लाइंट साइड कहने का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट विच आर रिटन इन एंगुलर विल एग्जीक्यूट एट क्लाइंट साइड, राइट? क्लाइंट इज नथिंग बट द ब्राउज़र, ये ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेगा. सो फ्रेमवर्क जस्ट क्या करता है? हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अराउंड हम क्या करते हैं? अपना कोड लिखते हैं और उस फंक्शनलिटी को आगे बढ़ाते हैं. लाइक जब भी हम किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो बेसिक स्केलेटल बना के देता है, बेसिक एक स्ट्रक्चर बना के देता है जिस पे हम आगे काम करते हैं, उस पर कोड लिखते हैं. सो फ्रेमवर्क विल फोर्स अस टू वर्क इन अ स्टैंडर्ड वे, राइट? सो इनडायरेक्टली करता क्या है? इट हेल्प्स टू मेक आवर एप्लीकेशन standardized, right? So it will simplify the process of making an application. For example, if we want to create a web app, we will write index.html, right? This is the starting page which we write for any project, any application, right? So this will be the initial page which is going to be display. So every time whenever we are creating a new project, so what we will do? We will follow the same process. We will create index.html, we will import all the dependency and all, whatever libraries are there and all, which is a time consuming process as well as tedious. So framework will simplify our task by creating a basic skeleton for us. It's clear? Now coming to the next point, SPA development. What is SPA development? SPA is a more modern approach, right, to application development. It used by the Google, Facebook, Twitter, etc. We will see more explanation on SPA in next slide. So let's see the impressive features of the Angular. First is mobile, desktop and web. So basically करता क्या है? Angular empowers developers to build application that can run on the web, mobile or other desktop, right? Next क्या है? Modular. सो बेसिकली करता क्या है? ये एक मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है एंगुलर बाय डिजाइन पैटर्न. एंगुलर क्या प्रोवाइड करता है? क्लियर कट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं ऑन टॉप लेवल, लाइक मॉड्यूल application will be splitted in module. Again inside module we will have the component and all. We will see in the upcoming videos about this. Next, reusable code. Reusable code means
we can use the code for mobile application too. सेम कोड हम लोग वेब के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट करेंगे, और सेम कोड को हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, आगे देखेंगे हम लोग. अनदर फीचर क्या है कि ये फास्ट डेवलपमेंट होता है और इजी भी होता है, राइट. नेक्स्ट है एंगुलर has been developed as well as maintained by the dedicated Google engineers. Angular team उनके हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, और TypeScript जो है वो उसको Microsoft. Another features इसका है Angular का लाइक टू वे डाटा बाइंडिंग है, जिसमें क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन होता है, हैंडल किया जाता है बिटवीन डेटा एंड मॉडल इफिशिएंटली. दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव फीचर ऑफ द एंगुलर टू वे डाटा बाइंडिंग. हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे टू वे डाटा बाइंडिंग करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स. लेट्स सी स्पार्क डेवलपमेंट. व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन? A single page application is an application that works inside a web browser, right? And does not require page reloading during use. सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है? एक तरीका का एप्लीकेशन है जो कहाँ रन करता है? वेब ब्राउज़र में रन करता है, और इसमें पेज लोड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेज लोड नहीं होता है, राइट. इफ़ वी सी every time whenever we are clicking something on a new page, right, something on the web page, so a new page gets loaded from the server. जब भी हम किसी भी एक्शन पे परफॉर्म करते हैं, क्लिक करते हैं आइकन पे या सब मेन्यू पे, तो क्या होगा? एक न्यू पेज लोड होगा सर्वर से, विच मेक्स इट टाइम कंज्यूमिंग, राइट. ये टाइम कंज्यूमिंग है, इस टाइम पेज लोड होगा सर्वर से, आएगा क्लाइंट पे. So that's how the single page application came into the picture. Okay. So क्या होता है? मेन पहचान इसका क्या है? ये reloading, without reloading the page ये काम करेगा, right? Next. और सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, लाइक एवरीडे हम लोग यूज़ करते हैं जीमेल, गूगल मैप्स, फेसबुक. ये सब क्या होता है? पूरा पेज लोड नहीं होता है. जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक नोटिफिकेशंस है, मैसेज है, राइट, किसी भी तरीका का आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो पूरा पेज लोड नहीं होता है. ओनली दैट पार्ट विल बी लोडेड विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म द on which you are going to perform the action, right, and data will be refreshed for that particular block only, right. अब हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज, कि एडवांटेज क्या है. फास्ट, स्पा जो है फास्ट है, एज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज क्या होता है, लाइक HTML क्या है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है. ये सब क्या होता है? ओनली लोडेड वंस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऑफ एप्लीकेशन. एक ही बार लोड होगा, उसके बाद क्या होगा? ओनली डेटा इज ट्रांसमिटेड बैक. सिर्फ डाटा क्या होगा? ट्रांसमिट बैक होगा, इसलिए ये फास्ट है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इज सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड, राइट. डेवलपमेंट क्या है? सिंप्लीफाइड है और स्ट्रीमलाइंड होता है इसमें. नेक्स्ट है ईजियर टू मेक ए मोबाइल एप्लीकेशन. It's easier to make a mobile application because the developer can reuse the same code for web application and mobile application also, right? हम लोग देखेंगे किस तरह से वेब एप्लीकेशन के कोड को मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं आगे. नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग. सो ट्रबल शूटिंग आसान होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में. कैसे? हम लोग देखेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तब. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. क्या हैं इसके डिसएडवांटेज? स्लो टू डाउनलोड बिकॉज हेवी क्लाइंट फ्रेमवर्क. इट इज़ स्लो टू डाउनलोड बिकॉज हेवी क्लाइंट फ्रेमवर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी लोडेड टू द क्लाइंट.
नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स जावा स्क्रिप्ट टू बी प्रेजेंट एंड इनेबल्ड, राइट। जावा स्क्रिप्ट का होना ज़रूरी है, इनेबल होना रहना भी ज़रूरी है, और उसका ब्राउज़र में इनेबल होना भी ज़रूरी है। इफ़ एनी यूजर डिसेबल जावा स्क्रिप्ट in his or her browser, what will happen? It won't be possible to present applications and its actions in a correct way. कोई भी एक्शन परफॉर्म करावेंगे वो करेक्ट वे में परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, अदर डिसएडवांटेज हैं इसके, लाइक एस्पा जो है लेस सिक्योर है ड्यू टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, राइट। वी विल सी इन अपकमिंग वीडियोज़. It enables attackers to inject client-side script into the web application by other users. कैसे, मतलब ये डिसएडवांटेज है, हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मल्टी पेज एप्लीकेशन। वो सिंगल पेज एप्लीकेशन था एस्पा, जो कि एंगुलर एस्पा है, और मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या है? मल्टीपल पेज एप्लीकेशन वर्क इन अ ट्रेडिशनल अप्रोच, जो पुराना अप्रोच है जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसमें होता क्या है, एवरी चेंज, राइट, क्या होता है, डिस्प्ले द डेटा और सबमिट डेटा बैक टू सर्वर, रिक्वेस्ट रेंडरिंग ए न्यू पेज फ्रॉम द सर्वर इन द ब्राउज़र। जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं तो वो क्या होता है, सर्वर नया पेज जनरेट करता है और क्लाइंट को भेजता है। क्लाइंट इज नथिंग बट द ब्राउज़र. Whenever a request will be sent from the client to the server, server will process the request and generate a new page and send it back to the client. Client is nothing but the browser, right? So हम लोग इसका क्या देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन का और मल्टी पेज एप्लीकेशन का भी। Here we will see, let's assume this is client and this is server, right? So let me write here client and this is server, and single page application. So what will happen here, client will send a request to the server, right? This is request and server will send the response to the client. So here response will be what, not a page, response will be only data. होगा क्या, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, डेटा, और डेटा सेंड बैक टू दी क्लाइंट। सिर्फ डेटा जाएगा, क्या जाएगा, ओनली डेटा। डेटा किस फॉर्मेट में, वो डिफरेंट एक टॉपिक है, लाइक इन जेसन फॉर्मेट और अदर फॉर्मेट। तो ओनली डेटा जाएगा। इज इट क्लियर? Okay, now coming to the, let me discard this, I will explain about the multi-page application. Multi-page application में क्या होगा, multi-page application, इसमें भी सेम है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को, बट हियर क्या होगा, सिर्फ डेटा नहीं जाएगा, यहाँ पे पेज जाएगा, सॉरी, yes, and server will send response. This is nothing but response, right? Let me write here, sorry. This is request and this is
response. So here a new page will be sent back to the client. This is nothing but a page. Again, any action will be performed at client side, and if client send the request, second request, at second time also what will happen? Client will expect a response, right? So client क्या सर्वर क्या करेगा? सर्वर अगेन एक न्यू पेज जनरेट करेगा और उस पेज को सेंड कर देगा क्लाइंट को. सो इफ हियर यहाँ क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं कि एवरी टाइम अगर रिक्वेस्ट जा रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, एक न्यू पेज लोड हो रहा है क्लाइंट पे या ब्राउज़र पे, तो क्या होगा, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो इसको दूर करने के लिए क्या आया, सिंगल पेज एप्लीकेशन आया, कैम इनटू द पिक्चर. सो we saw this, I mean single page application and multi page application architecture. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर फॉर द to start with a new program, right? To write the program, what are the necessary things is for us. So we will see in next videos. Thank you guys. Please like, subscribe and share the video.